Praise the Lord, church. प्रेज़ द लॉर्ड कलीसिया। It's good to be back for another online service. बहुत अच्छा लगा फिर से हमारी ऑनलाइन सभा पर आकर। As we go on with the praise and worship, let's focus on God and let's start with the opening prayer. जैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं और स्तुति और आराधना हम शुरुआत करेंगे। आइए हम परमेश्वर की ओर ध्यान दें। Father God, we thank you, Lord Jesus, for this time, Lord. We surrender this time into your hands, Lord Father. Yes, Lord. Wherever we are, Lord, we connect in one spirit and we come to you, Lord, with Yes, our Lord. hearts open, Lord, that you can change us, Lord Father. Yes, Lord. Lord, before we start this service, Lord, there is any sin that we have done, Lord, please forgive us, Lord Jesus. Yes, I pray, Lord, that we may come before you with a clean heart, Lord, Yes, and with an Lord. open mind that you can speak to us, Lord Yes, Jesus. Lord. In this worship and in this service, Lord, Yes, you Lord. speak to us, Lord, and let your Spirit do what He can do, Lord Yes, Jesus. yes. Lord, wherever we are, Lord, let your Spirit move and let the atmosphere change, Lord, as we connect with you, Lord Jesus. Amen. We Yes, thank you, Lord. Lord. We surrender this time into your hands, Lord. Yes, We Lord. surrender the time that is going to come as Pastor preaches the word, that we may grasp it, Lord Jesus. Every Yes, word we Lord. may accept it and we may live our lives according to it, Father. Yes, We thank you, Lord Jesus, and I pray in your precious name, Jesus. Amen. 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 Hallelujah.
तुझ्या प्रभूला धन्यवाद येशूला. धन्यवाद यीशु. हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर. गिन गिन के प्रभु आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, क्योंकि आप स्तुति और आराधना के योग्य है पिता परमेश्वर. बेशुमार प्रभु तेरे दानों के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं. इस नए साल में आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु. और हम जानते हैं प्रभु शत्रु हमारे खिलाफ योजना जरूर बनाएगा, पर वो कभी सफल नहीं होगा प्रभु, क्योंकि हम आपकी छाया में है पिता परमेश्वर. हम पर कभी सफल नहीं होगा पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें अपने लहू से खरीदा है पिता परमेश्वर. धन्यवाद करते हुए यीशु, आपने आज तक हम सबको संभाला है प्रभु, इसलिए धन्यवाद प्रभु. आपकी सुरक्षा प्रभु हमारे जीवन में है प्रभु, हमारे चारों ओर है प्रभु, इसलिए धन्यवाद प्रभु. धन्यवाद यीशु. आंधियाँ बन के आए, जिंदगी के फिकर, आंधियाँ बन के आए, जिंदगी के फिकर. कौन है तेरा केवल हारा, है भरोसा तेरा किधर. कौन है तेरा केवल हारा, है भरोसा तेरा किधर. गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए. तूने अब तक संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए.
present, my future. And I thank you for my past, Lord Jesus. I thank you, Lord Jesus, for all the glory and honor goes to you, my Father. I shout, Lord Jesus, to the Lord. I shout out to the Lord, Yes, Lord. Lord Jesus. I tell all the earth, Lord Jesus, that you are my King, you are my Master, you are the living God, Lord Jesus. Thank you, O Father. Let us pray for the bread and cup. Dear Lord Jesus Christ, I thank you that you loved us so much that you gave your life on the cross for our sins. You shed your precious blood to forgive and cleanse us. We confess that we have sinned and we are in need of your saving grace. We acknowledge our need for you because we cannot save ourselves. We open our hearts to you and receive you as our Savior and Lord. We thank you that you have given us eternal life so that we will have no fear of death. In Jesus' most powerful, mighty and precious name I pray. Amen. Lord, as we pray for the tithes and offerings, bless it and let it be used for your kingdom. Bless each and every person that puts in. Bless their lives, finances, health, and everything that they need. Let the jobs and businesses be blessed too. Let the tithes and offerings multiply, and let many more people come into your kingdom and accept you as their personal Lord and Savior. As your word says, every knee shall bow and every tongue confess that you alone are God. I make this prayer in the holy precious name of Jesus. Amen. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति। Greetings to you in the name of our matchless Lord and Savior Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार आप सबका स्वागत है। It's good to rejoice in the house of God प्रभु के घर में आनंदित रहना अच्छा है, because the presence of God is where God dwells. क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति होती है जहाँ पर वो निवास करता The है। Bible states that God enthrones in the praises of His people. और परमेश्वर अपने लोगों की स्तुति में विराजमान होते हैं, ऐसे बाइबल कहता And है। as we have praised and glorified God through the praise and worship and lift His holy name, और जैसे हमने स्तुति आराधना से परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाया है, it readies our heart to receive His word. इससे जो है हमारा हृदय तैयार होता है उसके वचन को ग्रहण करने It के लिए। readies our heart, it prepares our heart to get the miracle. और इसलिए हमारा हृदय तैयार हो जाता है वो चमत्कार को पाने के लिए जो हमारे लिए रखा है। And Father, today we come back to you. और इसलिए पिता हम फिर एक बार आपके पास आते हैं। We thank you that you are a big God धन्यवाद प्रभु, आप महान हो and you will do big things once again. और फिर एक बार आप महान कार्य करोगे हम सबके जीवन में। More than we can expect, Lord, through your word, you will change things from within our lives. और जितनी अपेक्षा हम रखते हैं उससे कई गुना ज्यादा आप हमारे जीवन में कार्य करोगे, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। And help us, my God, give us understanding through your word. और आपके वचन के द्वारा प्रभु आपके वचन की समझ हमें दो प्रभु। We give you glory. सारी महिमा हम आपको देते In हैं Jesus' name. यीशु के नाम से। Hallelujah and praises to God once more. हालेलुया, सारी स्तुति परमेश्वर को, For He lives forever and ever. क्योंकि वो ही हमेशा हमेशा के लिए राज करता He है। is the only light of the world, that is Jesus Christ. दुनिया का प्रकाश यीशु मसीह है There's no substitution. और उसकी जगह कोई ले नहीं सकता, He is the one and forever He will be. क्योंकि हमेशा के लिए वो ही राजा रहेगा। His kingdom is from everlasting to everlasting. और उसका राज्य हमेशा हमेशा के लिए स्थायी किया गया है। These important facts and realities, we need to keep it within our hearts and know it thoroughly throughout our thought life. और ये सारी सत्यता जो है हमें अपने हृदय में और हमारे मन में सदा रखना जरूरी है। Today I bring you God's word, very interesting word. आज फिर एक बार हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। You need to encourage yourself in the Lord through His word. परमेश्वर के शब्द के द्वारा, उसके संदेश के द्वारा खुद को प्रोत्साहित
किए हुए रखना जरूरी है, God's word is comforting. क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सांत्वना देता है, God's word is for discipline. हमें अनुशासित करता है। God's word is for blessing and transformation. परमेश्वर का शब्द हमें अंदर से बदलता है। God's word is for healing. परमेश्वर का शब्द हमें चंगा करता है God's word is for instruction. और हमें निर्देशन भी देता है। So today we will see God's word. तो फिर एक बार परमेश्वर के वचन को हम देखेंगे, Whatever it comes, God's word will only benefit us. क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें हमेशा जो हमारे लिए फायदेमंद होता You है। need to say to yourself, today as I hear God's word, I am going to be benefited. और जैसे आप परमेश्वर के शब्द को सुनते हो, आपको खुद से कहना है कि ये विश्वास से कि मैं आज परमेश्वर के वचन से आशीष को पाने वाला हूँ, God is changing me for the best. कि परमेश्वर मुझे जो बदल रहे हैं अच्छाई के लिए, My mind, my heart, everything within is going to be transformed. कि मेरा मन और मेरा हृदय दोनों ही आज और बदलने वाला है। The light of God that is within us would just move into everywhere into our bodies. और इससे परमेश्वर के ओर से आया हुआ प्रकाश हमारे जीवन में फैलेगा। Don't think about anything but just look at God's word. Hear God's word today. अपनी दृष्टि यहाँ वहाँ न डालकर अपनी दृष्टि आज हम परमेश्वर के वचन पर डालेंगे, Faith comes by hearing and hearing the word of God. क्योंकि विश्वास आता है परमेश्वर के शब्द को सुनकर और सुनकर। Today's message is don't cross the line. It is in the Old Testament, 1 Kings chapter 2 verses 36 to 46. आज का जो शीर्षक है लकीर को पार मत करो, और जो परमेश्वर का शब्द है वो है एक राजा की पुस्तक 2 अध्याय 36 से 46 वचन तक। Let us open our Bibles and let us go through it. बाइबल को खोलकर हम इसको पढ़ेंगे। Whenever you are hearing God's word, you must have your Bible in front of you. जब भी आप परमेश्वर के शब्द को सुनते हो तो अच्छा है अगर आपका बाइबल, आपका खुद का बाइबल आपके सामने हो, तो ताकि आप उसको खोलकर खुद भी जो पढ़ सकते हो। That means we are actually taking part in hearing the word of God. जब आपका बाइबल आपके हाथ में हो और जब हम वचन दे रहे हैं, आप अगर खुद भी जो पढ़ रहे हो तो आप खुद भी शामिल होते हो उस शिक्षण में। Taking notes is all the more better, so you can go back and you can look at it. और जो भी शिक्षण आप सुनते हो उसको लिखना अच्छा होता है, क्योंकि बाद में आप उसको फिर से जो पढ़कर खुद को याद दिला सकते हैं इस संदेश के बारे में। Verse 36 of 1 Kings 2. एक राजा 2 अध्याय और 36 वचन से हम पढ़ना शुरू करें। I'll read a part of it and then another part will be read in Hindi. एक एक करके जो है हम इस जो वचन को पढ़ेंगे। Then the king sent and called for Shimei and said to him, build yourself a house in Jerusalem and dwell there, and do not go out from there anywhere. For it shall be on the day you go out and cross the brook Kidron, know for certain you shall surely die. Your blood shall be on your own head. And Shimei said to the king, the saying is good. As my lord the king has said, so your servant will do. So Shimei dwelt in Jerusalem many days. Now it happened at the end of the 3 years that 2 slaves of Shimei ran away to Ashish, the son of Makkah, king of Gath. And they told Shimei, saying, look, your slaves are in Gath. So Shimei rose, saddled his donkey, and went to Achish at Gath to seek his slaves. And Shimei went and brought his slaves from Gath. And Solomon was told that Shimei had gone from Jerusalem to Gath and had come back. Then the king sent and called for Shimei and said to him, did I not make you swear by the Lord and warn you, saying, know for certain that on that day you go out and travel anywhere, you shall surely die. And you said to me, the word I have heard is good. Why then have you not kept the oath of the Lord and the commandment that I gave you? The king said moreover to Shimei, you know, as your heart acknowledge,
all the wickedness that you did to my father David. Therefore, the Lord will return your wickedness on your own head. But King Solomon shall be blessed, and the throne of David shall be established before the Lord forever. So the king commanded Benaiah, the son of Jehoiada, and he went out and struck him down, and he died. Thus the kingdom was established in the hand of Solomon. Up to verse 46. आइए हम पढ़ते हैं 36 वचन से 46 वचन तक। 2 राजा 2 अध्याय। और राजा ने शिमी को बुलवा भेजा और उससे कहा, तू यरूशलेम में अपना एक घर बनाकर वही रहना और नगर से बाहर कहीं न जाना। तू निश्चय जान रख कि जिस दिन तू निकलकर किद्रोन नाले के पार उतरे, उसी दिन तू निसंदेह मार डाला जाएगा और तेरा लहू तेरे ही सिर पर होगा। शिमी ने राजा से कहा, बात अच्छी है, जैसा मेरा प्रभु राजा ने कहा है वैसा ही तेरा दास करेगा। तब शिमी बहुत दिन यरूशलेम में रहा, परंतु 3 वर्ष के व्यतीत होने पर शिमी के 2 दास गत नगर के राजा माका के पुत्र आकीश के पास भाग गए और शिमी को यह समाचार मिला कि तेरे दास गत में है। तब शिमी उठकर अपने गधे पर काठी कसकर अपने दास को ढूंढने के लिए गत की आकीश के पास गया और अपने दासों को गत से ले आया। जब सुलेमान राजा को इसका समाचार मिला कि शिमी यरूशलेम के गत को गया और फिर लौट आया है, तब उसने शिमी को बुलवा भेजा और उससे कहा, क्या मैंने तुझे यहोवा की शपथ न खिलाई थी और तुझसे चिताकर न कहा था कि यह निश्चय जान रख कि जिस दिन तू निकलकर कहीं चला जाए, उसी दिन तू निसंदेह मार डाला जाएगा? और क्या तूने मुझसे न कहा था कि जो बात मैंने सुनी वह अच्छी है? फिर तूने यहोवा की शपथ और मेरी दृढ़ आज्ञा क्यों नहीं मानी? और राजा ने शिमी से कहा कि तू आप ही अपने मन में उस सब दुष्टता को जानता है जो तूने मेरे पिता दाऊद से की थी, इसलिए यहोवा तेरे सिर पर तेरी दुष्टता लौटा देगा। परंतु राजा सुलेमान धन्य रहेगा और दाऊद का राज्य यहोवा के सामने सदैव दृढ़ रहेगा। तब राजा ने यहोयादा के पुत्र बनाया को आज्ञा दी और उसने बाहर जाकर उसको मार डाला और सुलेमान के हाथ में राज्य दृढ़ हो गया। Once again, the title is Don't Cross the Line. फिर एक बार शीर्षक है लकीर पार मत करो। You have seen this is between 2 people, that is King Solomon and Shimei. आपने सुना ये कहानी जो है 2 लोगों के बीच की कहानी है, सुलेमान राजा और शिमी व्यक्ति के बीच में। And you will be understanding what is got to do that he was put to death just because he left Jerusalem. तो आप सोचोगे शायद कि शिमी ने ऐसा क्या बुरा किया, वो सिर्फ अपने दासों को फिर से लाने के लिए जो गत गया था, तो उसके साथ ऐसा क्यों किया गया? Was King Solomon so harsh? तो क्या सुलेमान राजा इतना जो सख्त था? And what was the wicked thing that Shimei had done that he was put to death? और शिमी ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई? Let's talk about Shimei. तो अब हम शिमी के बारे में कुछ जानेंगे। Who is Shimei? ये शिमी कौन है? The word meaning of Shimei means renowned. शिमी शब्द का मतलब है कि मशहूर। So the name itself means renowned, means good. It didn't have a bad meaning. शिमी शब्द का अर्थ जो है यानी कि मशहूर, यानी कि अच्छा अर्थ है इस नाम का। There are about 18 Shimais mentioned in the Old Testament. पुराने नियम में करीबन 18 शिमी नाम दर्ज है। Some are mentioned because of genealogies. कुछ शिमी के नाम जो है उनके जनजाति के वजह से जिक्र है। Some are mentioned because they had intermarriages with other cultures. कुछ नाम इसलिए दर्ज है क्योंकि उन्होंने जो है
दूसरे जातियों से जो है विवाह किया। Some are mentioned because they were connected with good biblical characters. और कुछ शिमी का नाम जिक्र है अच्छे किरदारों की वजह से जो पुराने नियम में परमेश्वर के दास रहे हैं, Like King Saul, like David, like Esther. जैसे कि शाऊल राजा, दाऊद की तरह, एस्तर रानी की तरह। But I'll talk about two Shimais for now, and then we will talk about the actual one here mentioned in 1 Kings 2:36. हम अभी जो है खास करके जो है इस शिमी के बारे में, 2 शिमी के बारे में जानेंगे जो हमें थोड़ी सी कहानी जो बताएगा इस शिमी के बारे में जानने के लिए। Because both these Shimais, they have some history. क्योंकि जो है इस शिमी के जो है की बैकग्राउंड की कहानी है, उसके जो घर परिवार का जो है पूर्वज की जो कहानी है, जिसकी वजह से ये जो लिखा है उसके बाद इसकी जो समझ आएगी। And we must not get confused who's who now. और इसको हम जो समझेंगे कि शिमी ये जो अलग अलग कौन कौन है। Like there are many Peters, many Pauls, many, Joseph, many Stephens. So, and some are good, some are not good, and then we get confused. So, we are shortlisting who's who now. उसी प्रकार से जैसे एक व्यक्ति का नाम जो है, जैसे अगर जो पीटर है तो शायद बहुत सारे लोगों का नाम जो पीटर होगा, तो आपको जानना है कि किस पीटर की बात हम कर रहे हैं। उसी प्रकार से जो है ये जो शिमी नाम है, इसके बारे में जो है जानने से पहले हम जो है उसका जो बैकग्राउंड जानेंगे, ताकि हमें पता चले कि ये शिमी असल में कौन था। I'll talk to you about the good man Shimi now first. तो पहले शिमी नाम का एक व्यक्ति जो अच्छा व्यक्ति था, उसके बारे में हम जानेंगे। He was the son of Gershom, that's one of Levi's son. वो गेर्शोम का पुत्र था जो लेवी की जनजाति से था। Why is this man so important in the Bible? This Shimei. अब ये शिमी जो अच्छा व्यक्ति था, ये इस कहानी से कैसे जुड़ा है और इसका महत्व क्या है इस कहानी में? You know, everyone most of them had put their hand to the making of the tabernacle of Moses. पुराने नियम के जो है मूसा के तंबू को बनाने में बहुत सारे लोगों का हाथ था, ये हम जानते हैं। And this Shimei was responsible for the care of the tabernacle tent. और ये शिमी जो है, ये अच्छा व्यक्ति शिमी जो है, उसको जिम्मेदारी दी गई थी मूसा के तंबू को बनाने में। जो है उसका जो काम था कि मूसा के तंबू के जो पर्दे थे उसका पूरा इंचार्ज ये शिमी को जो बनाया गया। You know, the whole tent, its covering, the curtain, everything. The entrance curtain. मतलब कि मूसा के तंबू का के अंदर और बाहर के सारे जो पर्दे जो डाले गए थे, इतने हम जानते हैं कि जो पर्दे थे उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो डिटेल्स थे, कारण थे, और ये सारे जो पर्दों का पूरा महत्वपूर्ण काम इस शिमी के हाथों में डाला गया था, जो अच्छा व्यक्ति था। Because in the tabernacle there were curtains. मूसा के तंबू में जो पर्दों का बहुत महत्व था वहाँ। Entrance curtain, courtyard curtain. तंबू के अंदर जाने के लिए एक जो पर्दा पार करना होता था, बाद में बाहरी आंगन से एक एक जो है आंगन में जाने के लिए जो पर्दे होते थे। Curtain surrounding the tabernacle and the altar. फिर पूरे तंबू को ढकने के लिए जो पर्दे होते थे, वेदी के चारों ओर जो है अलग जो पर्दे होते थे, तो ये सारी चीजें होती थी। So this Shimei, he was doing service in the tabernacle of the Lord. तो ये शिमी को जिम्मेदारी दी थी मूसा के पूरे तंबू यानी कि प्रभु के निवास स्थान के पर्दों को ख्याल रखने का जिम्मेदारी उसके ऊपर था। But God has never forgotten even a person who takes care of the curtain. और ये Hallelujah. That is so व्यक्ति good. जो सिर्फ जो पर्दों
का ख्याल रख रहा था, पर्दों की जिम्मेदारी थी सिर्फ उस पे, लेकिन परमेश्वर ने उसकी ये सेवा अनदेखा नहीं किया। उसने जो अपनी सेवा निष्ठा से की, परमेश्वर की निगाहों ने उसे देखा कि उसने ये सब कुछ किया है विश्वसनीयता से। It may sound a small thing, but in eyes of God, it is a service unto Him. तो शायद कोई सोचेगा कि खाली जो पर्दों को की देख रेख करना, तो ये तो जो ये छोटा काम है, लेकिन परमेश्वर की नजर में ये भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य था और परमेश्वर की नजरें उसके ऊपर थी क्योंकि उसने अपना काम अच्छे से किया। See, whenever you are doing service unto God, not only you, but it is your generation that God will bless. Please understand what I am saying today. इसीलिए ये शिमी ने जो विश्वसनीयता से अपनी जिम्मेदारी निभाई पर्दों की देखरेख करने में, उसने जो सेवा की उसकी वजह से उसकी पीढ़ी भी आशीषित हुई। यानी कि जो भी हम सेवा करते हैं प्रभु के लिए, प्रभु के घर में, उसके राज्य के लिए, जो भी सेवा हम करते हैं, छोटी हो या बड़ी हो, वो सारी सेवा करने की वजह से हमारे आने वाली पीढ़ी आशीषित होती है क्योंकि हम विश्वसनीय रहे। So those who are doing work in the house of God, whatever it may be, I am telling you with confidence from God's word, your generation will be blessed. और इसीलिए परमेश्वर Hallelujah. के घर में परमेश्वर की सेवा हम जिस किसी तरह भी करते हैं, उसका इनाम परमेश्वर खुद हमें देते हैं और हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी आशीषित करते हैं हमारी सेवा की वजह से। And if you see, there is a generation that became a leader of music during King David's time. और इस शिमी का जो पीढ़ी वो आगे में जो है, जो वाद्य के जो है क्षेत्र में जो है अगवा हो गया। It was a person named Asaph. उसका नाम था असाफ। You will see the Psalms written by Asaph certain places. और इसलिए जो है, जो बाइबल में खास करके भजन संहिता की पुस्तक में हम देखते हैं कई जो है भजन जो लिखे गए हैं, वहां पर लिखा है कि असाफ का भजन या असाफ का गीत, ये वही असाफ है जो इस शिमी का जो पीढ़ी से है। And the same Psalms we are reading today, it came because this Shimei had served in the house of God, that is the tabernacle. और हम देखते हैं ये आसफ के जो गीत हम जो पढ़ते हैं बाइबल में, वो आशीषित हुआ। क्यों? क्योंकि शुरुआत शिमी की विश्वसनीयता से शुरू हुई थी, जो आशीष उसके पीढ़ी पे आया, और अब ये आसफ जो है गीतों को उसने लिखा जो बाइबल में दर्ज है। If you see Psalm 73 is written by Asaph. जैसे कि भजन संहिता 73 में जो है वो असफ का गीत है। So you understood that because of his generation that was long back serving in the tabernacle, today he is chosen by God to write a psalm, and we read it even today. इसलिए हम देखते हैं कि शिमी की विश्वसनीयता की वजह से जो पीढ़ी के जो है उसके कई पहले जो है वो विश्वसनीय रहा, लेकिन इतने जो पीढ़ी के बाद भी असफ आशीषित हुआ और वो जो है वाद्य का अगवा हो गया है। मतलब कि जो भी हम सेवा करते हैं जो है उसका आशीष पीढ़ियों तक जाता है। That means God is choosing people from those who are serving today. Their generation ahead also will be chosen in the work of the Lord. मतलब कि जो भी प्रभु की सेवा में कुछ ना कुछ करते हैं, उनकी आने वाली पीढ़ी तक भी जो है बच्चे आशीषित रहते हैं। परमेश्वर उनके ऊपर आशीषें भेजता रहता है क्योंकि किसी ने विश्वसनीयता से सेवा की। I encourage you to serve in the house of God. I encourage you to work for the kingdom of God, because
you and your generation will not be forgotten. और इसलिए हम हमेशा आपको प्रोत्साहित करते रहते हैं कि आप प्रभु के घर में जो है प्रभु की सेवा करते रहो, क्योंकि आप किसी भी प्रकार से प्रभु की सेवा जब करते हो तो आशीषें आपके ऊपर आती जरूर है और आपके आने वाली पीढ़ी पर भी वो आशीषें आती है। Now we will come to the other Shimei. अब दूसरे शमी के पास जाते हैं। Who was he? He was from the clan of King Saul. अब ये दूसरा शमी जो है वो शाऊल राजा के जो समूह से था। This is the history connected to today's word. और ये दूसरा शमी की कहानी जो है ये परमेश्वर के इस शब्द से जुड़ा है। It says that when David was forced to flee from his son Absalom, ऐसी कहानी है कि जब दाऊद राजा अपने ही बेटे से दूर भाग रहा था अब्सलम से, this man Shemi, he cursed David. तब जो है शमी ने जो है दाऊद के ऊपर श्राप दिया And he pelted stones. और उसने उस पे पत्थर भी मारे And he accused and believed that King Saul died because of David. और शिमी ने ये जो है दाऊद के ऊपर जो है इल्जाम लगाया कि शाऊल राजा की मृत्यु हुई थी और उसका कारण दाऊद है। But David's men wanted to kill this Shemi. और ये इल्जाम लगाने की वजह से दाऊद के साथ जो लोग थे वो लोग इस शमी को मार डालना चाहते थे, Because they could not take the cursing that their master had to hear. क्योंकि जब उन्होंने देखा कि दाऊद को जो है जो उनका राजा है असल में, जब उन्होंने देखा कि दाऊद के ऊपर ये शिमी जो है इल्जाम लगा रहा है, जो है श्राप डाल रहा है दाऊद के ऊपर, तो उनको बहुत गुस्सा आया और वो चाहते थे कि शिमी को वो मार डाले। David's men knew that David had not harmed anybody. क्योंकि दाऊद के साथ जो लोग थे वो जानते थे कि दाऊद ने कभी भी किसी के ऊपर भी कोई हानि नहीं पहुंचाई, And especially not King David, Saul, sorry. और खास करके शाऊल राजा को के ऊपर तो उसने कभी हाथ जो है उठाया ही नहीं उसके विरोध में, ये वो जानते थे। In fact, King David got a chance to kill King Saul, but he never laid his hand on the anointed. बल्कि वो ये भी जानते थे कि एक बार शाऊल राजा तो पूरी रीति से दाऊद के हाथ में भी आया था, लेकिन फिर भी दाऊद ने शाऊल राजा को कोई हानि नहीं पहुंचाया। ये भी वो जानते थे, इसलिए वो जानते थे कि दाऊद पूरी रीति से निर्दोष है और ये शिमी जो है बेकार में उसके ऊपर जो है इल्जाम लगाता जा रहा है, श्राप देता जा रहा है, तो उनको बहुत गुस्सा आया इस शिमी के ऊपर। That's why be careful of rumors. और इसीलिए जब लोग किसी दूसरे के बारे में कुछ आपको बताते हैं तो जो है बहुत चौकन्ने रहो कि वो जो है बात गलत हो सकती है और वो गलत सोच विचार आपके मन में भी डाल सकते हैं दूसरों के विरोध में जो गलत हो। This rumor that was going on, that Shimei also believed. और जो है शिमी को के मन में भी ये गलत फहमी हुआ था कि दाऊद राजा कारण है शाऊल राजा की मृत्यु की वजह से। असल में ऐसा ये जो सत्य नहीं था, लेकिन उसको ऐसा जो लगा था और यही बात उसने जो है जो बाहर व्यक्तित्व किया। And from the clan of Saul also, those people also believed. But Shimei had his outbursts against David. शाऊल राजा के साथ जो लोग थे उन्होंने जो है अपने शाऊल राजा की मृत्यु के लिए जो है उन्होंने दाऊद के ऊपर वो खफा थे, लेकिन जो हम देखते हैं कि ये शिमी के हृदय में वो घृणा था दाऊद के विरोध में और उसने इस गुस्से को व्यक्तित्व किया, बाहर दिखाया कि उसके हृदय में दाऊद के विरोध में क्या है। So David stopped his men, don't touch him, let it be. तो हम देखते हैं कि वचन के अनुसार दाऊद ने कभी भी जो है किसी के ऊपर जैसे कोई हानि नहीं पहुंचाया है, उसी प्रकार से उसने कहा कि शिमी जो भी बोल रहा है जाने दो, उसको छोड़ दो। So when Absalom was killed and David was back on the throne, और फिर बाद में जब
एब्सलम की मृत्यु हुई, उसके बेटे एब्सलम की मृत्यु हुई, तो दाऊद फिर से जो है अपने सिंहासन पर आ गया। Now Shimei, this evil Shimei, found danger for himself because David has come on the throne. जब ये शिमी ने देखा कि दाऊद फिर से जो है सिंहासन पर आ गया है, तो वो डर गया कि अब तो दाऊद राजा हो गया है। तो अब आगे उसने क्या किया? This is how people play games from here to there. They keep changing. जैसे कि कुछ लोग जो है समय समय से अपनी राय को जो बदलते हैं परिस्थिति देखकर। Now when David came on the throne, he could have crushed the enemy, अब killed जब him. दाऊद सिंहासन पर फिर से आ गया, तो अगर वो चाहता तो शिमी को सीधे सीधे मार डाल सकता था। In fact, Shimei brought 1,000 men gathered and asked for mercy from King David. तो हम देखते हैं आगे में शिमी ने क्या किया कि 1000 लोगों को अपने साथ लेकर वो दाऊद के पास आया और क्षमा मांगा कि मैंने ऐसे ऐसे किया। See, in the kingdom now, David knew Jehovah. राज्य में हम देखते हैं दाऊद राजा अपने परमेश्वर को अच्छे से जानता था। He knew that God had anointed him and appointed him. दाऊद ने इस बात को समझा कि परमेश्वर ने उसको चुना है, And they said things about him, और लोगों ने उसके विरोध में काफी कुछ कहा। but it didn't matter. He was there to rule Israel. And like that, many people were saying a lot of things. लेकिन लोगों की बातों से वो कभी खफा नहीं हुआ, वो गुस्सा नहीं हुआ उनके ऊपर। उसने अपना जो है क्रोध उनके विरोध में नहीं रखा, उनको हमेशा क्षमा किया। There is a spirit of Shimei operating. लेकिन हम देखते हैं शिमी की तरह जो है, शिमी की आत्मा जो है यहाँ वहाँ हमेशा देखने को मिलता है, जो दूसरे के विरोध में चीजें बोलते रहते हैं। Coming against God's anointed people. खासकर परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों के विरोध में वो चीजें बोलते रहते हैं जो गलत है। Sometimes it could be from the clan, because he was from the clan of Benjamin, that is Saul's clan was Benjamin tribe. हो सकता है कि वो ऐसे शिमी जैसे लोग जो है अपने ही समूह में से हो कोई। So the accusations came in, but David didn't bother. He was focused. तो शाऊल राजा के समूह में से ही एक ने जो है इतना जो बड़ा इल्जाम लगाया, लेकिन फिर भी दाऊद ने उसको अनदेखा किया और जो है वो अपने जीवन को देखते हुए अपने प्रभु पर दृष्टि लगाकर जिया। So by coming against David, he actually defied God. You're defying God's anointed. लेकिन शिमी ने जो दाऊद राजा के विरोध में किया, वो उसने दाऊद के विरोध में नहीं किया, लेकिन परमेश्वर के विरोध में जो है उसने जो गलत किया, क्योंकि दाऊद को परमेश्वर ने चुना था। तो दाऊद के विरोध में आने की वजह से वो परमेश्वर के विरोध में आया था असल में। This Shimei deserved death. और शिमी ने जो किया उसकी वजह से उसको तो मृत्यु का दंड ही मिलना चाहिए था। But because of King David's goodness, he discovered mercy. लेकिन दाऊद राजा के दया के स्वभाव के वजह से, जो दया करने के स्वभाव के वजह से शिमी ने मुआफी पाया। Today, brothers and sisters, we have discovered mercy through our Lord Jesus Christ. उसी प्रकार से जैसे यीशु मसीह के द्वारा आज हमने क्षमा पाया है, We have done things more worse than this Shimei. इस शिमे से भी ज्यादा बुरी चीजें हम सब ने की है। We have done things that are unrighteous. हमने अधर्मी कार्य किए हैं अपने जीवनों में, But God gave us a chance to discover mercy. लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें दया दिखाया है और हमें क्षमा किया। Later on, this Shimei repents for his sin. He is given a chance. और दाऊद राजा ने शिमी को मौका दिया ताकि वो पश्चाताप कर सके, उसको जो है पश्चाताप करने का मौका दिया दाऊद राजा ने। So we need to understand, with mercy comes God's grace, His favor, His salvation. तो परमेश्वर जब हम पर दया दिखाते हैं तो उस दया में क्षमा के लिए जो मौका दिया जाता है, उसका अनुग्रह वो हमें देता है
ताकि हम क्षमा प्राप्त करके दूसरों को भी क्षमा कर सकें। Many a time लेकिन हम बहुत बार अपने जीवन में इस शिमी की तरह व्यवहार करते we हैं। think wrongly, हमारे मन में गलत सोच होते हैं, we speak wrongly, गलत बोली होती है हमारी, we do evil in the sight of God Most High. और परमेश्वर के विरोध में भी हम कभी कभी गलत करते हैं। There is such unrighteousness committed by us at times. कभी कभी अधर्मी कार्य भी हम अपने जीवनों में करते हैं। So we need to understand as we approach 1 Kings 2:36, which we are right now. I've given you the whole history of this Shimei that we are going to talk about. तो ये शिमी जिसने दाऊद का विरोध किया, ये शिमी के बारे में ये वचन लिख रहा है यहाँ पर। Before King David could die, he had warned his son Solomon about this Shimei. हम देखते हैं दाऊद राजा की मृत्यु के पहले दाऊद राजा ने सुलेमान राजा, जो उसका दाऊद राजा का बेटा है, दाऊद राजा ने सुलेमान राजा को इस शिमी के बारे में सब कुछ जो बताया कि उसने ऐसा ऐसा किया था, तो उसकी कहानी सुलेमान राजा जानता था। So all the things are recorded. तो सारी बातें जो की गई थी उसका ज्ञान है उसे। This fellow thought that David is dead. Now he can take everything for granted. शिमी ने सोचा होगा कि अब दाऊद राजा की मृत्यु हुई है तो अब वो आजाद है सारी चीजें जो उसने की है उससे। But in 1 Kings 2:36, King Solomon sent and called for the Shimei. Come. लेकिन एक राजा दूसरे अध्याय में जो है इस 36वें वचन में हम देखते हैं सुलेमान राजा इस शिमी को बुलवा भेजता है। Build yourself a house in Jerusalem. Wow, what और privileges. सुलेमान Right. राजा ने शिमी से कहा, तुम अपने लिए यरूशलेम में अपने लिए एक घर बनाओ, Dwell there. यरूशलेम में घर बनाकर तुम वहां पर रहो। Even you believe, I'm telling you, Christians want to go to Jerusalem and they get a chance to just go and build a house there. Wow, so nice. इतना अच्छा लग रहा है इस बात को सुनने के लिए कि सुलेमान राजा ने शिमी को बुलवाया, उसको बोला कि अपने लिए घर बनाओ यरूशलेम में, वो भी वहां पर तुम रहो। जैसे कि कुछ लोग यरूशलेम में अपना घर बनाने के लिए बहुत उत्सुक है और अगर किसी ने ऐसा मौका दिया तो बहुत खुश हो जाएंगे कि यरूशलेम में हम अपना खुद का घर जो बना रहे हैं। And it's stated that do not go out from there anywhere. Hallelujah. और सुलेमान राजा ने शिमी से कहा कि यरूशलेम में घर बनाने के बाद तुम यरूशलेम में ही रहना, यरूशलेम के बाहर मत जाना। I am reminded back to the garden. I'm going to come back to the garden now. मतलब ये जो पढ़ते हुए हमें ईदन के बगीचे का याद आता है। God made Adam, Eve, eat all the fruits. Only this, don't touch. जैसे कि ईदन के बगीचे में परमेश्वर ने आदम हवा से कहा था कि तुम इस बगीचे में रहो और इस बगीचे के हर पेड़ का फल खाना, लेकिन बगीचे के बीच के पेड़ का फल, खाली वो ही पेड़ का फल तुम्हें नहीं खाना है। वो ही ऐसे ही सामान्य कहानी जैसी दिखती है। What they were not supposed to do, Adam and Eve did. और आदम हवा ने वही किया जो उनको कहा गया था तुम्हें नहीं करना है। Coming back to Kings, अब यहाँ की कहानी, he was told not to go out anywhere. Shimi- Enjoy Jerusalem, yeah. शिमी को कहा गया था कि तुम यरूशलेम में रहो, यरूशलेम का पूरा जो मजा लो, वहां पर ही तुम रहकर जो है अपना जीवन अच्छे से जो तुम्हें जो बिताना है। We are called from darkness into His light. Enjoy the kingdom. जैसे हमें अंधकार से निकालकर रोशनी में ले आए हैं प्रभु, तो अब प्रभु कहते हैं इस रोशनी में अभी अच्छे से जियो। There is a warning in 37. For it shall be on the day you go and cross the brook Kidron. Know for certain you shall surely die. Your blood shall be on your own head. लेकिन आगे 37वें वचन में लिखा गया है, लेकिन ये जान लो कि जिस दिन तुमने जो है किद्रोन की नदी को पार कर दिया तो उसी दिन तुम्हारी मृत्यु होगी और तुम्हारा लहू तुम्हारे ही सर के ऊपर होगा, तुम्हारी ही करनी के द्वारा। You know brook Kidron. There was Kidron Valley. What is all these things? तो ये किद्रोन की घाटी के बारे में, किद्रोन की नदी के बारे में जो लिखा है कि उसको जो पार कर नहीं जाना है, क्या है ये? Kidron means darkness.
किद्रोन शब्द का ही मतलब है अंधकार। So you need to understand why, because the dead was buried over there, cemetery. क्योंकि किद्रोन घाटी में जो है मृतकों को जो है वहां पर गाड़ा जाता था। So that was your line, that was a border. You don't cross that. तो सुलेमान राजा ने शिमी को कहा कि तुम यरूशलेम के अंदर अच्छे से रहो, तुम्हें किद्रोन की नदी को पार कर कर उस तरफ नहीं जाना है। Don't go there. तुम्हें तुम्हारी ये जो सीमा है, ये सीमा को पार करके तुम्हें नहीं जाना है, ये तुम्हारी जो लकीर है। We have been given a line. We cannot cross things and do whatever we want in the kingdom of our Lord Jesus Christ. उसी प्रकार से जैसे परमेश्वर के वचन में जो है हमें सारे निर्देशन दिए गए हैं, जिससे हमको कहा गया है कि हमें भी उस लकीर को, अंधकार की जो लकीर के उस पार नहीं जाना है। अंधकार के लकीर को अगर हम जो पार करेंगे तो समस्या होगी। That's why there are laws that are governed in the kingdom for our benefit. और इसीलिए ये सारे कानून जो लिखे गए हैं, जिसका पालन हमें करना जरूरी है, इसलिए दिए गए हैं हमारी अच्छाई के लिए। Many a times we are going across, we are going into the dark, and there's where the problem is. लेकिन काफी बार हमेशा हम उस लकीर को जो पार करते हैं, जिसकी वजह से हम पर विपत्तियां आती है। If you break the hedge, the serpent will bite. अगर तुम सीमा को तोड़ोगे तो सांप आपको डसेगा। For certain you will die. और इसलिए लिखा गया है, अगर तुमने किद्रोन की नदी को पार किया तो तुम्हारी मृत्यु निश्चय होगा। We will see in verse 38, and Shimei said to the king, the saying is good. As my lord the king has said, so your servant will do. So Shimei dwelt in Jerusalem many days. 38 वचन में लिखा गया है, सुलेमान राजा की इस बात को सुनकर शिमी ने जो है अपनी सहमति दी और उसने राजा से कहा, आप जो कह रहे हो वो अच्छा है, मेरे प्रभु मेरे राजा, तुम जो कह रहे हो वही तुम्हारा ये दास करेगा। और उसके अनुसार शिमी यरूशलेम के अंदर ही निवास किया काफी दिनों तक। राजा ने जैसा कहा था वैसे उसने किया। There are 3 parts to this message. इस शिक्षण के 3 भाग है। The first part, a line is drawn. सबसे पहले लकीर खींची गई है। You need to be in Jerusalem. Don't go out from there. And the line was the brook of Kidron. वो लकीर किद्रोन की नदी थी, जो लकीर खींची गई थी सुलेमान राजा के द्वारा शिमी के लिए। और शिमी को कहा गया था, ये जो लकीर को तुम्हें पार नहीं करना है। He accepted the condition of King Solomon. और सुलेमान राजा ने जो कहा था, शर्त रखी थी, उसके अनुसार शिमी ने अपनी सहमति भी दी और काफी दिनों तक वो यरूशलेम में रहा भी। I was wondering why King Solomon had ever told him that. तो मैं सोच रहा था कि सुलेमान राजा ने शिमी को ये बात क्यों कही। Others could go, what while him? तो दूसरे सब लोग जो पार कर सकते थे, सिर्फ वो ही पार नहीं कर सकता था। Because his citizenship was being tested. क्योंकि सुलेमान राजा उसकी नागरिकता की भावना को जो परखना चाहता था कि वो सुलेमान राजा के आज्ञा का पालन करता है या नहीं। His loyalty was being put to test. उसकी विश्वसनीयता की परख थी वो। And what happened? He agreed to the terms of the king. और शिमी ने सुलेमान राजा की ये बात सुनकर अपनी सहमति दी कि ठीक है, मैं यरूशलेम में के अंदर ही रहूंगा, किद्रोन नदी के उस पार नहीं जाऊंगा। Many Christians, they come to the Lord and they're enjoying for few days in the environment of Jerusalem. When I say Jerusalem, I'm talking about the environment of the kingdom of God. उसी प्रकार से काफी सारे विश्वासी लोग भी जब यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, उसके बाद कई समय तक वो विश्वसनीय रहते हैं और वो यरूशलेम का पूरा आनंद लेते हैं। जब हम कहते हैं यरूशलेम का आनंद लेना, इसका मतलब यरूशलेम परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। और इसीलिए बहुत लोग जो है कई समय तक परमेश्वर की उपस्थिति में जो है आनंद लेते हैं, अपना जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में जीते हैं।
कई समय तक। They are enjoying the blessings in Jerusalem. और यरूशलेम में रहकर परमेश्वर की आशीषों का वो पूरा आनंद लेते हैं। And we need not go out of that. और असल में वहां से बाहर जाने की जरूरत भी है नहीं। So what is the instruction to those who are following Christ today? तो इससे विश्वासियों को क्या निर्देशन मिलता है? Live in the presence of God. कि परमेश्वर की उपस्थिति में जीते रहो। Enjoy the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति का पूरा आनंद लेकर जियो। Be in the environment where there are saints of God who go to the temple of the Lord. जहाँ पर दूसरे विश्वासी है जो परमेश्वर के उपस्थिति में मिलते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके जो संगति में रहो। Pray without ceasing, for this is the will of God. निरंतर प्रार्थना करो क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। Rejoice evermore. हमेशा आनंदित रहो। Be at peace with everyone. हर एक के साथ शांति से रहो। There is a favor upon Jerusalem. Enjoy that favor, Shimei. यरूशलेम के ऊपर जो है परमेश्वर की कृपा दृष्टि है, तो यरूशलेम में रहकर उस कृपा दृष्टि का पूरा आनंद लो। He was really enjoying, and he dwelt in Jerusalem many days. He was enjoying. और लिखा है कि शिमी काफी समय तक यरूशलेम के अंदर निवास करके उसने यरूशलेम का पूरा आनंद वो ले रहा था। Then the second part was an oath was declared, and he accepted that oath. तो हम देखते हैं दूसरी बात की जो शर्त सुलेमान राजा ने रखी थी शिमी के लिए, उसने उसके साथ अपनी सहमति दी। But if you see later in verse 39 and 40, after 3 years, 2 slaves of this man Shimei, they left and they went to Gath. लेकिन हम देखते हैं आगे 39वें वचन में लिखा गया है कि ऐसा हुआ कि 3 साल के बाद शिमी के यरूशलेम में रहने के 3 साल के बाद जो है ऐसा हुआ कि शिमी के 2 गुलाम जो है, 2 उसके जो दास थे, वो भागकर जो गए, उसके घर को छोड़कर भागकर चले गए। So what this fellow does, he arose, saddled his donkey, and he went out of Jerusalem, he went to Gath, brought the slaves back. तो ये जो उसके जो गुलाम जो भागकर जो गात जगह में चले गए थे, शिमी को जब ये बात जो पता चली, वो गधे पर सवार होकर आकीश गया, गात जगह से उन 2 गुलाम को वापस ले आया अपने घर। So in the third part, the promise was disregarded. तो शिमी ने क्या किया? जो वादा उसने अपनी सहमति दी थी कि ये मैं यरूशलेम के बाहर नहीं जाऊंगा, उसने उस वादे को तोड़ा। So as the promise was broken, and he broke the hedge, and he went out, and he came back. और शिमी ने उस लकीर को पार कर दिया, जो शर्त रखी गई थी उसको तोड़ दिया। वो लकीर को पार कर कर गया और वो 2 गुलाम को वापस ले आया अपने घर। And it was brought to the notice of King Solomon. ये बात जो हुई, घटना जो हुई, इसके बारे में सुलेमान राजा को पता चला। Many a time we do things and we think that God does not notice. The king will always notice. बहुत बार हम भी सोचते हैं, अगर हम कुछ करते हैं तो हम सोचते हैं कि किसी को कुछ पता नहीं चला, लेकिन परमेश्वर को सब पता होता है हम जो भी करते हैं। There are sometimes it is called the chalega Christians. काफी कुछ चीजें हम करते हैं और हम कहते हैं चलेगा, Chalega. Can do what you want. मतलब कि आप जो भी चाहते हैं आप करना चाहते हो। Nothing will happen. Yeah, first time only I am doing. कुछ नहीं होगा, पहली बार कर रहे हैं। One only little drink I want to take today. छोटा सा थोड़ा सा ही को पीना चाहते हैं। I want to look over here only for some time, enjoy it. थोड़े समय के लिए वहां पर जाकर देखना चाहता हूँ, थोड़े समय के लिए आनंद लूंगा। Pornography. जैसे कि जो है श्लील चित्रों को देखना, Have a drink with our friends. या फिर दोस्तों के साथ शराब पीना, Many other vices. या फिर ऐसे जो गलत आदतों में खुद को शामिल करना गलत है। Gossiping from house to house. या फिर दूसरों के बारे में घर घर जाकर
जो बातें करना, दूसरों के बारे में जो गलत या बुरी बातें करना घर घर जाकर, doing things in secret. या फिर गुप्त में चीजें करना जो गलत है। So Solomon was told that Shimei had gone from Jerusalem to Gath and had come back. Everything was noted. That means Solomon's eyes were kept on Shimei. तो आगे 41वें वचन में लिखा गया है कि सुलेमान को यह पता चला, शिमी यरूशलेम के बाहर गया था गात जगह पर, और वहां से वो वापस भी आया है। He must have got 3 years over, 1000 days over. What is there? He must have forgotten now. तो शिमी ने भी ऐसा ही सोचा होगा कि अभी 3 साल के बाद में बाहर गया था, शायद जो है सुलेमान राजा को इसके बारे में कैसे पता चलेगा, और फिर क्या जो फर्क पड़ता है, 3 साल के बाद तो मैं बाहर गया था और वापस आया। We must understand that followers of Christ, we cannot take things for granted. लेकिन विश्वासी होने के नाते हमें यह समझना है कि परमेश्वर का वचन जो भी निर्देशन देता है, हमें उसके अनुसार ही चलना जरूरी है, उसका विरोध हम नहीं कर सकते हैं। I am reminded now that many a times we say yes Lord, and then we don't do it. उसी प्रकार से जैसे हम काफी बार हाँ प्रभु कहते हैं, लेकिन उसके अनुसार हम करते नहीं हैं। You know, remember that song? I'm trading my sorrows, I'm trading my pain for the joy of the Lord. Yes Lord. We say a lot of things in a song also. जैसे हम उस गीत को गाते हैं कि मैं अपने सारे दुख के बदले में आपका आनंद लेता हूँ प्रभु, मैं इस बात को मानता हूँ प्रभु। हम गीत को गाते हैं, लेकिन जो हम गा रहे हैं उसके अनुसार हम विश्वास करके जीते भी है क्या? Please take care what you say before our King of Kings and Lord of Lords. हमें बहुत ध्यान देना है कि हम हमारे मुंह से परमेश्वर के सामने हम क्या कह रहे हैं, क्या गा रहे हैं। We are only human. मैं तो सिर्फ एक मनुष्य हूँ, And the life that God has given us, we need to enjoy that mercy. लेकिन परमेश्वर की दया का सही आनंद लेना जरूरी है। Keep that pride, keep that anger out, keep that unforgiveness out. सारा क्रोध, जलन, अंधकार की चीजें अपने जीवन से दूर करो। Then it says in verse 42, the king sent and called for Shimei and said to him. आगे 42वें वचन में लिखा गया है, फिर सुलेमान राजा ने शिमी को बुलवा भेजा और उससे कहा, When an oath is broken in the kingdom, you will be called. जब हम कोई भी वादा तोड़ते हैं तो हमको भी बुलवाया जाता है। When you break laws, it is recorded. God knows everything, whether other people know or not. We cannot try to fool God. और इसलिए जब कभी भी हम परमेश्वर के कानून को तोड़ते हैं, तो चाहे दूसरे लोगों को इस बात का पता चले या ना चले, परमेश्वर को मालूम है कि हमने क्या किया है, और वो हमें बुलवा भेजता है। And listen, what King Solomon is saying to the Shimei. और अब हम ध्यान देंगे सुलेमान राजा ने शिमी से क्या कहा। Did I not make you swear by the Lord and warn you, saying, know for certain that on the day you go out and travel anywhere, you shall die. उसने कहा कि क्या मैंने तुम्हें प्रभु का वादा देकर जो है ये चेतावनी नहीं दी थी कि ये जान लो कि जिस दिन तुम इस लकीर को पार करोगे उसी दिन तुम्हारी मृत्यु होगी। That means Jehovah was witnessing what I told you at that time. यानी कि प्रभु भी गवाह है कि जो वादा किया गया था हम दोनों के बीच में, जो तय किया गया था, उसको तुमने तोड़ा है, ये प्रभु की निगाह में तुमने किया। King Solomon is saying, I may just be a king on earth, but there is a greater king above me. मतलब कि सुलेमान राजा यहाँ पर शिमी को बता रहा है कि ये वादा जो तुमने तोड़ा है, ये सिर्फ तुम्हारे मेरे बीच की बात भी नहीं थी, प्रभु भी गवाह था कि तुमने इस वादे को किया था। And you said to me also, the word I have heard is good.
सुलेमान राजा ने शिमी से कहा, तुमने ये भी कहा था कि जो शर्त रखी गई है वो अच्छा है। You acknowledged it. मतलब कि तुमने भी इस बात को स्वीकारा कि जो शर्त रखी गई है वो अच्छी शर्त है और तुम उसको मानोगे। Brothers and sisters, many a times in the church, that is the house of God, we say many things. Lord, I give you my life, I'll do this, I will do that. And then God records every whisper that comes out of our mouths. उसी प्रकार से जब हम प्रभु को कहते हैं कि प्रभु मैं ये करूंगा, प्रभु मैं वो करूंगा, जब भी आप कुछ भी कहते हो या फिर सोचते भी हो कि प्रभु मैं ये करूंगा, प्रभु मैं वो करूंगा, और बाद में अगर हम भूल जाते हैं तो ये बहुत ही जो है भयानक बात है, क्योंकि परमेश्वर ने वो सारी बातों को सुनकर ध्यान में रखा। जो भी वादा तुमने किया था ये प्रभु नहीं भूले हैं। And many a time we think, why this problem is coming up? What is the reason for this problem? It may be because we have broken the oath which we have given the Lord. और फिर हम सोचते हैं कि ये समस्या क्यों हुई, वो समस्या क्यों हुई। हो सकता है कि आपने अपने मुंह से वादे किए थे प्रभु की उपस्थिति में प्रभु को, और तुमने उनको नहीं रखा, तो शायद उन वादों को न रखने की वजह से समस्याएं आई है। King Solomon is saying, why haven't you kept the oath of the Lord? It was the oath of the Lord. और इसलिए सुलेमान राजा ने शिमी से कहा कि प्रभु का ये शपथ तुमने क्यों नहीं रखा, क्यों तोड़ा? And the commandment I gave you the commandment, but you kept the oath of the Lord. तो प्रभु का ये शपथ किया गया था और मैंने भी तुम्हें आज्ञा दी थी तुम्हारा राजा होने के नाते, फिर भी तुमने ऐसा किया। So you have not kept the oath. That is what is the problem now? तो ये जो शपथ के प्रति तुम विश्वसनीय नहीं रहे। So the king said to Shimei, तो अब राजा ने शिमी से कहा, you know, as your heart acknowledges, now it becomes a heart problem. राजा ने शिमी से कहा कि तुम्हारा हृदय भी खुद जानता है इस बात को। That's why God sees the heart. इसीलिए परमेश्वर हमारे हृदय को भी जानते हैं कि हमारे हृदय से हम असल में क्या करते हैं। We may say what we want, but God knows our heart. Believe me. हम अपने मुंह से चाहे कुछ भी कहे, लेकिन हृदय से क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, ये सब कुछ प्रभु जानता है। परमेश्वर से कुछ भी छुपा नहीं है। It is very important to check in our heart where we are standing today. और इसलिए हमारे हृदय को हमेशा जांचना जरूरी होता है कि हमारे हृदय में असल में हृदय से हम क्या चाहते हैं या हमारा ध्यान मन कहाँ पर है। And most of the time while checking our own heart we also go wrong. That's why we say, Lord, you search me and you find if you can see anything. और कई बार तो हमारे खुद के हृदय को जब हम जांचते हैं तो हम खुद को पूरा जो मार्क्स देते हैं, हम कहते हैं कि अच्छा है। इसीलिए वचन कहता है कि प्रभु आप ही जांचो कि मेरे हृदय में क्या है, क्योंकि प्रभु हमें जो है पूरी रीति से जानते हैं। So King Solomon is saying, Shimei, that your heart acknowledges all the wickedness you did to my father. Now, everything that is done is now, the record has come back. तो सुलेमान राजा ने अब शिमी से कहा कि तुम्हारा हृदय भी गवाह है, ये जानता है वो सारी दुष्टता जो तुमने मेरे पिता दाऊद के साथ भी की थी, ये तुम खुद जानते हो कि तुमने क्या क्या किया था मेरे पिता दाऊद के साथ। That means you have asked for pardon earlier. That was not out of remorse. That was just because you wanted to save your life. That's it. मतलब सुलेमान राजा क्या कहना चाहता है यहाँ पर, वो शिमी को बता रहा है कि तुमने हृदय से, दिल से मेरे पिता से क्षमा नहीं मांगा था। इसका मतलब है क्योंकि जो है तुमने सिर्फ मुंह से ही क्षमा मांगा था, हृदय से तुमने मेरे पिता से क्षमा नहीं मांगी थी। सिर्फ जो है तू छूट जाए इसलिए तुमने क्षमा मांगा, दिल से नहीं किया था। But now God is searching the heart. Maybe David couldn't do that because he was not God. But God searches the heart.
इसलिए वचन कहता है कि परमेश्वर हृदय को जांचते हैं। मनुष्य नहीं जानता होगा कि हमारे हृदय में क्या है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानते हैं कि हमारे हृदय में क्या है, हमारी सोच किस प्रकार से है। My father David has died, but God knows everything. तो सुलेमान राजा ने शिमी से कहा कि मेरे पिता तो अभी नहीं रहे, लेकिन तुमने जो भी उसके साथ किया था मैं जानता हूँ। Conditions were laid, but you broke the oath. और अब जो शपथ तुमने लिया था, तुमने फिर से उस शपथ को तोड़ दिया है। Therefore, the Lord will return your wickedness on your own head. The Lord. और तुमने क्योंकि ये शपथ तोड़ा है, इसीलिए प्रभु तुम्हारी दुष्टता को ही तुम्हारे सर ले आएगा। King Solomon is saying, I am not there. King David is dead. God knows everything. Everything was told. You messed up. I cannot do anything. Only now the Lord. तो सुलेमान राजा ने शिमी से कहा कि ये अब तुम्हारी करनी है कि तुमने ये शपथ को तोड़कर अपनी खुद की दुष्टता को अपने सर फिर से ले आए हो। ये मैंने कुछ नहीं किया है, तुमने शपथ तोड़ा है और इसलिए तुमने तुम्हारी दुष्टता को ही अपने सर लिया है। That's why many believers fall asleep. और इसलिए लिखा गया है कि बहुत सारे विश्वासी जो है सो गए हैं। Then it says in verse, but King Solomon shall be blessed, and the throne of David shall be established before the Lord forever. He's talking about Jesus Christ. तो हम देखते हैं सुलेमान राजा ने जो कहा, उसके बाद जो है सुलेमान राजा कहता है कि दाऊद का सिंहासन जो है आशीषित है और वो स्थायी है प्रभु के सामने। And so he was struck down. और हम देखते हैं कि उसको मार दिया गया शिमी को। Who was struck down? Shimei was struck down. By who? Benaiah. शिमी को किसने मार डाला? बेनाया ने मार डाला। And Benaiah means God, Jehovah has built. बेनाया शब्द का मतलब है कि यहोवा ने बांधा है। It's not just anybody. मतलब कि किसी को भी ऐसे सुलेमान राजा ने नहीं बुलवाया शिमी को मार डालने के लिए। So we need to understand that God knows everything that is happening every moment of our lives. मतलब कि परमेश्वर हर चीज को जानते हैं। जैसे सुलेमान राजा ने जो है उसने खुद से कोई जो है न्याय नहीं किया। उसने कहा कि तुमने प्रभु के निगाह में जो गलत किया है, इसलिए प्रभु ही आपको जो है इसका दंड देगा तुम्हारे हृदय के अनुसार। तो इसलिए हमें भी चौकन्ना रहना है, क्योंकि प्रभु सब कुछ जानते हैं और हम जो करते हैं फिर उसका जो है भुगतान भी करना होगा। See, when you sin outside, that means you have not come to salvation. That's different. जब हम जो पाप करते हैं यीशु को जानने के बिना अगर हम जो पाप करते रहते हैं, That's a different issue. तो ऐसे लोग अलग है जो यीशु के बारे में जानते ही नहीं है, यीशु के द्वारा जो क्षमा मिलती है उसके बारे में जानते नहीं है और यीशु को स्वीकार नहीं किए, कभी सुना नहीं है। तो वो लोग, जब दुनिया के लोग जो पाप में जीते हैं, वो अलग बात है। But now when you know the mercies of God, you tasted the love of God, you tasted the peace of God, you tasted the favor of God, you tasted the healing of God, you tasted the promises of God, you tasted the protection of God, all these things you have tasted, you know everything about God. लेकिन दूसरी बात, दूसरी तरक्की के लोग जो यीशु मसीह को अनुभव किया, यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण किया, यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपने पापों की क्षमा को पाया है, क्षमा का अनुभव किया है और अब यीशु मसीह के दया में जीते हैं, उसके अनुग्रह में जीते हैं, उसके आशीषों का आनंद लेते हुए जीते हैं। ऐसे लोग जब जो पाप करते हैं या पाप में जीते हैं तो वो अलग होता है। When you deliberately go and do sin, I'm not talking about weaknesses will always be there. God is beautifying us. यानी कि वो लोग हैं जो जानबूझकर जो पाप कर रहे हैं,
जानबूझकर जो पाप में जी रहे हैं, यीशु मसीह के द्वारा अनुभव जो है अपना जीवन का बदलाव का अनुभव करने के बाद भी जानबूझकर अगर पाप में जीते हैं तो ये बहुत गलत है। हाँ, मनुष्य होने के नाते कमजोरियां हैं, जो कमजोरियों की वजह से हम गिरते रहते हैं, बार बार फिर हम क्षमा मांगते हैं, वो अलग है। लेकिन जानबूझकर पाप में जीना वो अलग है। Many people say, "Arey, tomorrow I'll give to the Lord. Tomorrow I'll do this. Tomorrow I'll do that." Nothing, and that is why they face a lot of problems. बहुत लोग जो है जब उनको कहा जाता है कि तुम ये गलत क्यों कर रहे हो, तो वो कहते हैं एक और दिन, एक और बार मुझे करने दो, फिर मैं जो है क्षमा मांग लूं। ऐसे नहीं कर सकते हैं। There are many who do not even give into the house of God. God calls them, read Malachi. या फिर They're कुछ thieves. लोग कहते हैं कि मैं अपना दशमांश जो है अगले महीने दूंगा, नेक्स्ट टाइम में अगली बार दूंगा। लेकिन विश्वसनीयता, जैसे वचन कहता है कि अपने भेंट और दशमांश प्रभु के घर में लाना जरूरी है, क्योंकि सारी आशीष उसकी ओर से आती है, तो दशमांश देना जरूरी है ताकि हमको आशीष मिले। तो सारे वचन के आज्ञाओं का पालन करना, पवित्रता में जीना, उदाहरण के तौर पर ये सारी बातें जो है रखना जरूरी है, तभी हम आशीष में जिएंगे। The kingdom is never about money. और परमेश्वर का राज्य जो है पैसों से उसको तोला नहीं जा सकता। Nor it is about land or property. और जमीन, संपत्ति, ये सारी चीजें, धरती की चीजें स्वर्गीय राज्य के साथ जो है जुड़ी नहीं जा सकती है। It is about love, joy and peace in the Holy Ghost. परमेश्वर के राज्य से Righteousness. जुड़ा हुआ है प्रेम, शांति, आनंद, धार्मिकता, ये सारी बातें परमेश्वर के राज्य के साथ जुड़ी हुई है। What happens in this scripture in 1 Corinthians 5:5? It's a little scary. और इसीलिए 1 कुरिन्थियों 5:5 के अनुसार जो हम इसको जो पढ़ते हैं तो बहुत ही सख्त ये जो वचन है। It says, "Turn this man over to Satan for the destruction of his body, so that his spirit may be saved on the day of the Lord." इस व्यक्ति को शैतान के हवाले कर दो उसके शरीर के नाश के लिए, ताकि उसकी आत्मा का जो बचाव हो जाए प्रभु के दिन में। Apostle Paul is saying, next, your boasting is not good. आगे लिखा गया है 6 वचन में कि तुम्हारा जो बड़ाई करना अच्छी बात नहीं है। You know that a little yeast leavens the whole batch of dough, don't you? 6 वचन में लिखा है तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। Verse 7, get rid of the old yeast so that you may be a new batch of dough. पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ। Since you are to be free from the yeast, for the Messiah, our Passover, has been sacrificed. अखमीरी हो क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। That's why many die early, prematurely. और इसीलिए बहुत लोगों की मृत्यु जल्दी हो जाती है। A lot of questions to this also. इससे भी काफी सारी चीजें जुड़ी हुई है। But we need to understand that here we are all on a purpose. लेकिन हमें समझना है कि हम सभी इस धरती पर है। Let us not be like this Shammai. हमें एक उद्देश्य दिया गया है हमारे जीवन में, जिसके प्रति विश्वसनीयता से, पवित्रता से जीना है। इस शिमी की तरह हमें अपना जीवन नहीं जीना है। Let's not walk the way according to this Shammai who came out of Jerusalem, who came out of the kingdom. इस शिमी की तरह अपना जीवन नहीं जीना है जो राज्य के कानून के विरोध में गया। But let's be like the earlier Shammai who served in the tabernacle of the house. लेकिन हमें वो पहले शिमी जो अच्छा व्यक्ति था उसकी तरह अपना जीवन जीना है, जो विश्वसनीयता से उस शिमी ने परमेश्वर की सेवा करता गया। God has given us a choice. प्रभु ने हमें चुनाव दिया है करने के लिए। What you decide today will be your tomorrow. और आज जो तुम निर्णय करते हो कि तुम्हें किस शिमी की तरह जीना है, इसी की वजह से तुम्हारे आने वाला कल होगा। This Shammai did not have to answer King Solomon. He had to answer God. इस दूसरे शिमी ने जो किया
उसका लेखा उसे सुलेमान राजा को नहीं देना था, उसे परमेश्वर को अपना लेखा देना था। We are not here to prove things to people. We are here to please our Most High God. और इसलिए हमें अपना जीवन दूसरों को देख देकर नहीं जीना है, अपनी निगाहें परमेश्वर पर रखकर जीते रहना है। Come, let us pray. आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, पिता परमेश्वर, we thank you for your goodness over our lives. आपकी भलाई के लिए धन्यवाद जो हमारे जीवन पर है। We have heard your word. हमने अपने वचन को सुना है। It is so good. इतना अच्छा वचन है, It is so rich. इतना भरपूर है It is full of honey, Lord. और मधु से भरा हुआ But है। at the same time, Lord, it is the medicine for us. साथ ही साथ हमारे लिए दवाई की शीशी भी ठहराती है। Thank you that you are teaching us, Lord. धन्यवाद प्रभु कि आप हमें चीजें सिखा रहे We हो। stand here at the altar. हम अब आपके वेदी के सामने खड़े हैं प्रभु। Forgive us, Lord. हमें क्षमा करो हमारे पापों के We लिए। have made all sorts of oaths and promises, Lord, before you. हमने काफी बार शपथ लिए हैं, वादे किए हैं आपके सामने प्रभु। We have said all things, Lord, that we will give you. हमने वादे किए कि मैं आपके राज्य में देंगे, But when we went out and we have forgotten, Lord, लेकिन जब हम वहां से बाहर निकले तो अपने शपथ को जो हमने किया था वो सारे भूल गए और हमने उसके अनुसार किया नहीं। you have blessed us with good things. फिर भी आपने अच्छी चीजों से हमें आशीषित किया है। Yet, Lord, we have been ungrateful, Lord. लेकिन फिर भी जो है हम आपके प्रति विश्वसनीय नहीं रहे। But thank you, God, we got opportunity once again today. प्रभु फिर एक बार ये मौका देने के लिए धन्यवाद कि फिर से हम आपके पास क्षमा से आ सकते That हैं। you ask us, Lord, that to come before you and we ask you for mercy and pardon. आज आपने मौका दिया है फिर एक बार, ताकि हमने जो भी अपने शपथ को नहीं रखा है, जो भी पाप किया है, उसके लिए हम क्षमा मांग सके। फिर एक बार आपके सामने ये मौका आने के लिए आपने दिया है, इसके लिए धन्यवाद। There are things inside broken, Lord, you can heal. और हमारे अंदर जो भी बातें टूटी हुई है प्रभु, उसको आप ही चंगा कर सकते हैं। Touch our thought life, Lord. हमारे मन की सोच को आप स्पर्श करो। Touch our eyes, what we see, Lord. हमारी आंखों को आप स्पर्श करो, हमारी दृष्टि को स्पर्श करो। Touch our ears, what we hear, Lord. हमारे कान जो सुनते हैं उसको स्पर्श करो प्रभु। Touch our mouths, what we say, Lord. हमारे मुंह को स्पर्श करो, जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं। Father, and we ask you by your Holy Spirit to govern us. हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा आप हमारे ऊपर नियंत्रण लो प्रभु। Today we got a chance. फिर एक बार आपने हमें मौका दिया, Today we got a chance. आज फिर एक बार हमें मौका दिया गया है। We have Jesus Christ who has taken us out of darkness into his marvelous light. यीशु मसीह ने खुद हमको अंधकार से निकालकर हमें रोशनी में ले आया है। He is the one who has gone and he has overcome death. यीशु मसीह ने क्रूस पर जाकर मृत्यु पर विजय हासिल की। He is over the Kidron Valley. किद्रोन घाटी के Hallelujah. ऊपर यीशु ने विजय हासिल किया। The Lord of Lords, the King of Kings, his name is Yeshua. और अब यीशु मसीह राजाओं के राजा है और प्रभुओं के वो प्रभु है। You may be hearing this for the first time, शायद आप ये बात पहली बार सुन रहे हो, but know that Jesus came for the lost. लेकिन आज ये बात जान लो कि यीशु भटके हुए लोगों को वापस लाने के लिए आया। The sick needs a physician. उसी प्रकार से जैसे बीमार लोगों को एक डॉक्टर की जरूरत होती है, Allow God, allow Jesus into your heart. उसी प्रकार से आज आप यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण करो। Make a simple prayer and say, God, Lord Jesus, come into my heart. एक साधारण प्रार्थना करो कि प्रभु यीशु मसीह आज आप मेरे हृदय में आओ, मेरे जीवन में आओ। Come and save me, Lord. Forgive me of all my sins. यीशु मुझे आज तू बचा ले प्रभु, मेरे सारे पापों को क्षमा कर प्रभु। Set me free, Lord, मुझे आजाद कर दो प्रभु, so that I may enjoy things of your kingdom. ताकि मैं आपका राज्य का आनंद ले पाऊं प्रभु। I may enjoy your presence first, Lord. आपकी उपस्थिति का मैं अनुभव कर सकूं प्रभु, इसलिए मैं प्रार्थना करता And हूँ। all of us, Lord,
we may commit our lives and dedicate it unto you once again. और हम सभी प्रभु इस समय हमारे जीवनों को फिर एक बार आपके सामने ले आते हैं और आपके हवाले समर्पण करते हैं हमारे जीवनों को। You have seen the work of Shammai who worked in the tabernacle, Father. शिमाय जो विश्वसनीय रहा आपके तंबू के कार्यों में, आपने उस शिमी को देखा। You have blessed his generation and you have made Asaph a songwriter. जिस प्रकार से उस विश्वसनीय सिमी के जो है पीढ़ी पर आपने आशीषों को दिया, जिसकी वजह से उसके पीढ़ी में से असाफ निकला जो अगवा बना वाद्य को बजाने के लिए प्रभु के सामने। I thank you, Lord, as you remember that, Lord, you will remember each one of us. और उस शिमी की विश्वसनीयता को जैसे आपने याद रखकर आशीषें भेजी, उसी प्रकार से प्रभु आप हमें भी याद रखोगे। इसके लिए धन्यवाद कि हमारी विश्वसनीयता जो तुम्हारे प्रति है उसे भी आप देख रहे हो। You will remember our children and our generation, my God. और हमारी सेवा का भावना का आशीष हमारी पीढ़ियों पर भी भेज दो प्रभु। Father, we thank you, Lord, that you came not to condemn but to save. और आपका वचन कहता है कि आप इसलिए नहीं आए ताकि दुनिया पे आप दोष लगाओ, लेकिन आप इसलिए आए ताकि दुनिया के लोगों का बचाव हो जाए। I give you all glory. इसके लिए हम सारी महिमा आपको देते We हैं। give you all the honor and we give you all the praise, Lord. सारा आदर और स्तुति आपकी करते हैं। May we continue to serve you, Lord. हम हमेशा आपकी सेवा करते रहे, इसकी आशीष दो प्रभु। May we have the passion to be and acknowledge you as Lord and Savior at every moment. और हर समय हमारे हृदय में आपकी सेवा करने का भावना और जोश हमेशा हमारे हृदय में भरपूरता से हो प्रभु। I pray for the beautiful people that are hearing this word. और सारे लोग जो इस संदेश को सुन रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आपकी आशीषें हर एक के ऊपर इस समय आए। I pray that your word would transform them. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपका ये वचन हर एक को स्पर्श कर कर उनको बदले। Touch their hearts, Lord. हर एक के हृदय को प्रभु आप स्पर्श करो। Lord, and I pray blessings upon each one's families. और हर एक के परिवार और घराने के सदस्यों के ऊपर आपकी आशीषें भेज दो प्रभु। If you are sick in your bodies, I speak the healing that comes from God's word. अगर आप अपने शरीर में बीमार हो किसी भी कारण की वजह से, हम चंगाई भेजते हैं यीशु के नाम से आपके शरीरों में। I speak healing to your bones right now. आपके हड्डियों के लिए हम चंगाई घोषणा करते I हैं। speak healing to your whole body, your organs in the name of Jesus. तुम्हारे शरीर के हर अंग के लिए हम चंगाई घोषणा करते हैं यीशु के नाम से। I give you glory, Lord, for you are mighty and you are lovely. और प्रभु हम सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु, क्योंकि आप महान हो और आप अच्छे हो प्रभु। We just want to bless your holy name. हम आपके नाम को धन्य कहते हैं We just want to lift your holy name. और आपके नाम को यीशु मसीह हम ऊंचा उठाते हैं। Father, we thank you once again. धन्यवाद प्रभु। May God bless you. प्रभु आपको आशीषित करे, Be fruitful, आप फलदायी बनो, increase, आपकी बढ़ोतरी हो, prosper, बहुगुना हो जाओ, and move in the things that God has put inside of you. और जो भी प्रभु ने आपके अंदर डाला है उसके राज्य की बातों में आप बढ़ते जाओ। Have a wonderful week ahead. एक आशीषित हफ्ता आप सबका हो। Shalom. शालोम। Until we meet next time. और हम फिर से मिलेंगे। Amen. आमेन।